So, children, let's recite the poem The Ice Cream Man. Let's read and enjoy. So, Ice Cream Man. Ice cream is favorite to children. The children loves ice cream, especially in summer season. And when they see the ice cream man, they always cluster around the ice cream man. They like different kinds of flavors of ice cream, like vanilla, chocolate, orange, and many others. So, and you also like ice cream, I think. And you can see what is cold, sweet, and creamy, and wonderful to eat. Definitely, it is ice cream. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. Ice cream. And everyone's favorite person might be the ice cream man. Okay, so your favorite person during the summer season is ice cream man. So let's recite the poem. Okay, when summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to drink from bottles full of frosty fudge, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around, as thick as honeybees. So, children, you can when you are in the city or maybe in the village, especially in a summer season, and when it is very hot, the weather is too hot, and during that time, the ice cream man with his little cart goes strolling down the street. And the ice cream man's moving around the street, and you see the ice cream man, and uh, you go to the ice cream man to buy different kinds of flavors of ice cream. Beneath his round umbrella, you can see the ice cream man has an umbrella to protect himself from heat, the scorchy heat. And what a joyful sight! The sight is very beautiful to see him feel the cones, and then you can see different colors of cones are there with mounds of cooling brown and white, and cones may be brown and white, vanilla, chocolate, strawberry. You can see the different kinds of flavors are here. Our chili things to drink from bottles full of phosphate and bottles full of phosphate cold drinks, and in the colors are green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed. Here you can see his cart is compared to a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around as thick as honeybees. The children are as compared as honeybees. Okay. सो बच्चों, जब गर्मी की टाइम होता है, चाहे आप घर पे हो या गांव में या शहर में, जब बहुत गर्मी होता है, तब आपको सबसे जो अच्छा लगता है, क्या है लगता है? आइसक्रीम। और जब आइसक्रीम मैन आपके दरवाजे के पीछे चिल्लाता है आइसक्रीम आइसक्रीम, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप दौड़ के जाते हो और आइसक्रीम या तो कोन्स या तो कुल्फी कुछ भी खरीद लेते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है बीनीथ इज राउंड ना मिला, और उसके पास एक छतरी होते हैं जो डिफरेंट कलर्स होता है, और आप देख सकते हैं इस टाइप का एक अम्ब्रेला होता है, छतरी होते हैं, और उसके नीचे आइसक्रीम बन रहते हैं, और उसके
उसके पास बहुत बहुत सारा आइसक्रीम होता है, कोन्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है। सो आप लोग जाते हैं और खरीद खरीद लेते हैं। और फ्लेवर्स आपको पता है कि डिफरेंट फ्लेवर अलग अलग होता है, जैसे वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। और उसमें फ्रॉस्टी पी जैसे कि बॉटल्स होता है, और उसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप का, जैसे कि कलर है, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, वाइट होगा और पिंक होगा, इस टाइप का आपको बॉटल्स मिलेंगे। और हिस कार्ट, जो उसके पास जो गाड़ी आता है, उसके उसको बोला जाता है कार्ट। और उसके कार्ट कैसे कम किया है, ये फ्लावर बेड, मतलब लगता है कि वहाँ पर फूल है। और फूल फूल में फूल के आसपास कौन आता है, मधुमक्खी आती हैं। और मधुमक्खी यहाँ पर कौन आए, ये बच्चे हैं, बच्चे आएंगे। बच्चों बच्चों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है मधुमक्खी मधुमक्खी के साथ। और बच्चे दौड़ के आते हैं और आइसक्रीम खरीद लेते हैं और अपना प्यास बुझा लेते हैं। और आइसक्रीम को बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों, इस गर्मी के टाइम से, गर्मी के सीजन में। तो हमें हमें भी पता है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम। सो आप लोग भी बहुत सारा आइसक्रीम खा लेते हो, चाहे दुकान में या तो जो आइसक्रीम मैन है आपके घर नज़दीक, या तो जो रास्ते में जाते हैं और आइसक्रीम आइसक्रीम बोल के करता है, तो आप लोग उस जाके आइसक्रीम खरीद लेते हो। तो ये पोएम बहुत अच्छा पोएम है। आइसक्रीम मैन, हम लोग सब हम सभी लोग, हम सभी जो है आइसक्रीम को पसंद करते हैं। और जो पोएट हैं, रचल फील्ड। सो द पोएट इज रचल फील्ड। एंड लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हम जो इस पोएम से क्या क्या न्यू वर्ड सीखे देखते हैं। फर्स्ट इज ब्लेज, स्पेलिंग BLAJD। और इसका मीनिंग है ब्राइट फ्लेम और फायर, ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रनलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड हिल्स। मतलब ब्लेज मतलब क्या हो गया, आग हो गया। और ट्रनलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड हिल, मतलब एक गाड़ी होगा जैसे छोटा छोटा पहिया होगा, और इसी को बोलते हैं टनलिंग। माउंट्स हीप और पाइल, मतलब माउंट्स होता है जैसे कि बहुत सारा इकट्ठा हो गया कोई एक भी चीज़, उसको बोलते हैं माउंट्स। फ्रॉस्टी पिच, चील्डिंग मेकिंग ए हिसिंग और बबलिंग साउंड, जैसे कि फ्रॉस्टी पिच बहुत मतलब एकदम फ्रीज हो गया है, और मतलब बहुत ठंडा है, और बहुत एक मतलब जैसे बर्फीली हो गया है, এবং बहुत अच्छा, मतलब बहुत ठंड लगता है उसमें, और जम जम गया है पूरा। क्लस्टर मीन गदर राउंड, मतलब इकट्ठा होना, सब लोग एक जगह में आ जाना, जैसे कि बच्चे सब लोग आ जाते हैं आइसक्रीम मैन देख के। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, तो यहाँ पर बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर। So here we can see the first question is, in which season is ice cream popular? कौन सा सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर है? तो डेफिनेटली इट इज आंसर क्या होगा, समर। सो आपको क्या लिखना है, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? किसको बहुत बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम मैन को देख के? ऑफकोर्स बच्चे, द चिल्ड्रन। So answer will be, the children feels joyful on seeing the ice cream man. Question number 3. Name the different flavors of ice cream the ice cream man in his cart. यहाँ पर क्या है कि आपको जो आइसक्रीम मैन उसके कार्ट में अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम लाते हैं, उसका नाम बोलना है। तो क्या होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया, आपको पता ही है, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। और आप अपने से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो the different flavors of ice cream the ice cream man has is in his cart are vanilla, chocolate, strawberry. Question number 4. What are the two things that the ice cream man is selling? क्या है वो दो चीज़ है जो आइसक्रीम मैन यहाँ पर बेचता है? कौन क्या है? एक है आइसक्रीम और एक है कोल्ड ड्रिंक्स, जो बोटल्स ऑफ फ्रॉस्टी पिच। सो द टू थिंग्स आर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. What is the ice cream cart compared to the poem? मतलब आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है, किससे तुलना किया गया है? एक फ्लावर बेड, जिसे हमने पढ़ लिए, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड।
सो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू ए फ्लावर बेड इन द poem. Okay. Now you can see having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Of course, आइसक्रीम मिलना बहुत गर्मी टाइम में बहुत बहुत एक्साइटिंग है, enjoyable भी है. So write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. और आप लोग विंटर सीजन में क्या करते हैं आपको वो लिखना है. Question number 2. List as many summer activities you can as you can. मतलब समर में आप क्या क्या करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इन इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. इंडोर मतलब आप जो घर में करते हो, आउटडोर मतलब आप घर बाहर करते हो. तो आपको जो कॉपी में इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी दो अलग से एक टेबल बना के लिखना है. मतलब घर में आप क्या करते हो और बाहर में आप क्या करते हो. हिस्से अलाउड. सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट z साउंड. हनी बीज. प्राइस मतलब मेज. ओके. राइज, ब्लेज, फीज, लेजी, बिजी. ओके. सो आपको ये जो है सर्कल करना है. लेट्स लिसन एंड टेल द साउंड that these words in the poem produce. Cut. Okay. Cut. Drinks. Can you make these sounds? So what are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? मतलब आइसक्रीम मैन जब आती है तब कैसे आवाज मिलता है आपको, जब आपको पता चलता है कि आइसक्रीम मैन आ गया. So now he find out and write a report. एक रिपोर्ट लिखना है. हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म. फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म. मतलब अंकल लाल के पास जो डेयरी फार्म है, मतलब वहाँ पर गाय रहते हैं, वहाँ पर मुझे फादर ले गए. आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस. हम लोग सब गाय देख लिए. अंकल लाल के पास जितने गाय हैं हम देखे. ही हैज़ 50 काउस. उसके पास कितने गाय थे? 50. दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स. मतलब वहाँ पर क्या खाते? घास खाते थे. एंड इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द barn टू बी टू द barn टू बी मिल्क. मतलब आपको मतलब दूध लेते थे शाम में. एंड अंकल लाल सेल्स इज मिल्क इन द सिटी. और दूध कहाँ बेचते थे? शहर में. सो व्हेन राइटिंग ए रिपोर्ट रिमेंबर डू दिस थिंग्स. थिंक ऑफ अ गुड टाइटल. मतलब आपको एक अच्छा टाइटल देना है. जैसे आप न्यूज़ में देखते हो टाइटल रहता है. राइट इट करेक्टली. आपको अच्छा से लिखना है. एंड कीप टू योर सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना है. और टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. सही क्रम से आपको लिखना है. मेक योर पेपर लुक नीट. मेक योर पेपर लुक नीट. मतलब आपका जो पेपर होगा वो अच्छा मतलब क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए. So in groups of 4, write a report on different brands of ice cream available in your area. मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखना है जो आपके एरिया में क्या क्या की मतलब फ्लेवर का आइसक्रीम मिलता है. आपको एक रिपोर्ट जो है लिखना है. यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज. आप इस क्लूज को यूज़ कर सकते हैं. स्टार्ट विद ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक. आपको एक शुरुआत में क्या है इंट्रोडक्शन देना है जिसके अंदर टॉपिक है होगा. एंड दे लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया. और आपके एरिया में जो आइसक्रीम मिलता है आपको वो जो लिस्ट आउट करना है. नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स. मतलब इस ब्रांड में कॉमन क्या है, कौन सा ब्रांड जो कॉमन है. और अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट एंड फाइंड आउट देयर प्राइसेस. मतलब इस ब्रांड में कौन सा एक ब्रांड होगा जिसमें अलग अलग फ्लेवर होगा और उसके फ्लेवर में कौन सा ब्रांड है जो सबसे बिकता है और उसका प्राइस क्या है. और फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. और आपको क्या लगता है कि आपके सबसे मतलब आपके हिसाब से मोस्ट पॉपुलर जो सब लोग मतलब पसंद करते हैं उस आइसक्रीम को लिखना है.
नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस यू हैव राइमिंग वर्ड्स। मतलब राइमिंग जो वर्ड होगा, जो जिसका साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, जैसे कि सिटी कार्ड, नहीं, सिटी कार्ड दोनों अलग हैं, सिटी और कार्ड दोनों साउंड जो है मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हिट स्ट्रीट, हाँ मिलता है। ब्लोज गोज मिलता है, डू गो नहीं मिलता है। हार्ड यर्ड, यस। बोल डॉल, नो। काउ सो, नो। लेबल टेबल, यस। स्काई माई, यस। प्ले ओबे, यस। रेस फेस, यस। राइट नाइट, यस। Next, question number two. What do the following words describe in the poem? Joyful, little, round. तो इस joyful में children feel joyful when they see the ice cream man. Little, the little children cluster around the ice cream man. Round, okay. So the ice cream man with his little cart trundling eh, cluster around the, so the especially the children cluster around the ice cream man. Next, what are the describing words used in the poem for the following? Mounds, flavor and a cluster. जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है एग्जेक्टिव है, अ, मतलब माउंट के साथ किसे के डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, फ्लेवर के क्या है और क्लस्टर क्या है, ओके। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इज माउंट, to fill the cones with mound of cooling brown and white. Mounds of cooling brown and white. Okay. Mounds of cooling brown and white. Okay. Flavor. Flavor. Here you can see flavor. You can see vanilla, chocolate, strawberry. Okay. Next. Cluster. Here you can see the children cluster around. The children cluster around as thick as honeybees. Okay. Next. Fun time. Color the boxes with the colors of the flavors mentioned in each. मतलब इस पोएम में जो जो फ्लेवर मेंशन किया गया उसको आपको कलर करना है। चॉकलेट यस, वनीला यस, ऑरेंज नो, ब्लैक करेंट नो, स्ट्रॉबेरी यस, raspberry no, butterscotch no, पिस्ता नो। ओके, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपको क्या करना है, आपके कॉपी में आपको एक ड्रीम आइसक्रीम जो है ड्राइंग करना है। डिस्क्राइबिंग इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, आपको कलर क्या है, फ्लेवर, साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स, आपको सब मेंशन करना है इसमें। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ईटन कुल्फी? आप कभी कुल्फी खाया है? एंड द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मतलब जो नॉर्थ इंडिया से आइसक्रीम मतलब मिलता है एक्चुअली। सो द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट they are not in the correct order. Write the correct number before each. मतलब इसमें जो है आपको सही क्रम में नहीं दिया गया, आपको क्या करना है, इसको नंबर लिखना है, जो जो फर्स्ट होगा उसको नंबर 1 लिखना है और जो सेकंड नंबर 2 लिखना है, इसी क्रम में आपको इसको जो है अरेंज करना है। ओके, ही scoops out the kulfi on a plate, then he poured some sweet syrup over it and serves it. The kulfi wala takes the kulfi moved out of the pitcher. He arranged some faluda around it. Okay, एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में जो है सही क्रम में आपको सजाना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।